next topic is surface area and volume, chapter 13, and in last video we did exercise 13.3, question number 1 to 4. Today we are going to do the question number 5 onward. So first we recall, in this topic we have given a right circular cone. This is the right circular cone. Let it be ABC, having base radius. This is the base is circular, top is conical. So let the radius of its base be the R unit, vertical height be the H unit, and this is the slant height. Slant height that is represented by L. So in any given right circular cone, we may have given these three quantity. First, what is the radius of its base, what is the height of this cone, that is vertical height from A to let this be the center of base, then AO be the H unit, and slant height, that is AC, is given be L. So out of these three quantity, any two may be given. So first, radius of base R unit, unit means centimeter, meter, whatever, then height H unit, slant height L unit. Then first of all we have to see what is the intra relation between R, H and L. देखिए, in this right circular cone, this is the vertical height, this is the radius of base, and this is the slant height. So this AOC be a right angled triangle. क्या है? AOC जो है ये आपका एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और इसका बेस R है, हाइट H है. So by Pythagoras theorem, H square plus R square will be equals to L square. This is the most important interrelation between the R, H and L. So this is the H square, this perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. So this is the interrelation between height, radius and slant height. So if any two thing out of these three is given, then third one we can find out using this formula, और इसको बोलते हैं interrelation between base, height and slant height. So generally L is given by H square plus R square square root. This is the slant height निकालने का एक formula. Now second thing, if we have to find the CSA, that is curved surface area of the cone, then the curved surface area in last video also discussed, pi RL unit square. Then area of base means इसका base का area कितना है? Base is circular, so circle का area कितना होता है? Pi r square. So area of base be the pi r square unit square. So if we have to find total surface area of the given, that is this is the conical part. So this is lateral surface होगा and base area is pi r square. So by adding these two, area of curved surface and area of base pi r square, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो pi r l plus pi r square. इसमें से pi r अगर अपन कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा r plus l. So total surface area is pi r into r plus l unit square. So these are the three basic formulas and one interrelation related to right circular cone. So let us start question number 5. First of all, read the question very carefully. So question is, what length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height? देखिए सी क्या दे रखा है हमें, एक टारपेलियन मींस एक त्रिपाल है, त्रिपाल जिससे अपने को एक कॉनिकल टेंट बनाना है और उस गिवन त्रिपाल का जो विड्थ है वो 3 मीटर गिवन है. सो लेट अस सपोज ये अपने को एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं. इस कॉनिकल टेंट में क्या क्या गिवन है दैट वी हैव टू रीड.
और ये मान के चलिए कि ये कोई आपका एक ट्रपेलियन है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है, लेट अस सपोज ए बी सी डी बी द ट्रपेलियन जिसकी विड्थ आपको कितनी दे रखी है 3 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब इस ट्रपेलियन को यूज लेकर के एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जिसमें क्या गिवन है, टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। इस कॉनिकल टेंट की, इसी तरपाल से जो अपन कॉनिकल टेंट बना रहे हैं उस टेंट की हाइट जो है दैट इज h इज इक्वल टू 8 मीटर है, और इसके बेस की जो रेडियस है दैट इज ये रेडियस है, रेडियस दे रखी है आपको 6 मीटर। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and vestige is cutting is approximate 20 centimeter। तो इस ट्रपेलियन को यूज लेकर जब अपन कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो कॉनिकल टेंट की स्टिचिंग में जहां-जहां बॉर्डर पर अपन उसकी स्टिचिंग करेंगे उसमें और वेस्टेज कटिंग में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ में उस ट्रपेलियन की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें जब ये टेंट इससे बन करके तैयार हो जाएगा तो ऐसे ट्रपेलियन की विड्थ हमें पता है, लेंथ हमें पता नहीं, तो व्हाट वी हैव टू सिंपली, देखिए इस ट्रपेलियन से अपन ये टेंट बना रहे हैं तो जो टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रपेलियन। अब ट्रपेलियन का एरिया क्या, अगर उसकी विड्थ दे रखी है, लेट अस को विड्थ इसकी b है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा l into b यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ टेंट के बराबर, दैट इज कर्व्ड सरफेस के। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए देखो हाइट दे रखी, रेडियस दे रखा, स्लांट हाइट हमें पता नहीं है, तो लेट अस को जो अपन ने ट्रपेलियन से जो टेंट बनाया उस टेंट का बेस रेडियस 6 मीटर गिवन है, वर्टिकल हाइट 8 मीटर गिवन है, स्लांट हाइट अननोन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्लांट हाइट निकालेंगे। सो गिवन क्या है, गिवन देखो सबसे पहले विड्थ ऑफ ट्रपेलियन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज 3 मीटर गिवन है। लेंथ अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रपेलियन लेट अस सपोज L मीटर है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। नाउ हाइट ऑफ लिखते जाए आप, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट जो अपन बना रहे हैं उसका हाइट कितना है, हाइट अपने को दे रखा है 8 मीटर। बेस रेडियस दैट इज r क्या दे रखा आपको 6 मीटर, एंड स्लांट हाइट जो है, स्लांट हाइट बी द L मीटर लेट, ये अपन मान के चले कि जो उसकी स्लांट हाइट है वो L मीटर। अब देखो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन LH एंड R। सो स्लांट हाइट इज गिवन बाय रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू h कितना है आपका 8 स्क्वायर में 64 और 6 स्क्वायर में 36 मीटर। सो ये हो जाएगा L will be positive स्क्वायर 64 plus 36 100, so it will be 10 मीटर। तो इसका स्लांट हाइट कितना आया आपका, स्लांट हाइट L कितना आ गया आपका 10 मीटर। अब देखिए स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट किसके बराबर होगा, पाई r L मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमें पता है मीटर में। सो पाई मींस 22/7 into r 6 है, स्लांट हाइट आपका 10 है, सो मीटर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 6 जा 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 6 to 12 31
132 into 10, so 1320 upon 7 meter square. On solving, it will be 188.4 meter square. This is the curved surface area of the tent. अब ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट आया, यही किसके बराबर है? इस ट्रेपेलियन के एरिया के बराबर. सो नाउ वी विल यूज नाउ एरिया ऑफ दिस टेंट किसके बराबर होगा? ट्रेपेलियन के. सो नेक्स्ट कंडीशन, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेलियन विल बी इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट. तो एरिया ऑफ ट्रेपेलियन किसके बराबर होगा? L into B. L into B is equals to pi RL मीटर स्क्वायर. सो pi RL कितना आ रहा है? 188.4 मीटर स्क्वायर. और यहां पर लेंथ, और जो लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है. ब्रेथ आपका 3 मीटर. इस मीटर से 1 मीटर कट जाएगा. ठीक है. सो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 188.4 अपॉन 3 मीटर. ठीक है. 188.4 अपॉन 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 62.8 मीटर. सो इस ट्रेपेलियन का विड्थ हमें पता था 3 मीटर एंड इसकी लेंथ कितनी होगी? 62.8 meter. So this is the very important question. Please pause the video and note down. Then question number 6. Question 6 को carefully read out करें. question को what is given and what we have to find out. So that question number 6 is the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter. एक conical tomb दे रखा है. Let us suppose this is your conical tomb है. ये कोई conical tomb है. और इस conical tomb में what we have given? conical tomb का जो slant height है. Let us suppose A, B, C be the conical tomb. This is the vertical height. This is the center of its base. So slant height क्या है? Let us slant height L है. L कितना दे रखा है? 25 meter is given. And the base diameter means B से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है that is 14 meter. तो ये डायमीटर दे रखा है. डायमीटर इंप्लाई द रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, सो 7 मीटर. ओके. तो रेडियस हो गया आपका r बराबर कितना हो गया? 7 मीटर. और वर्टिकल हाइट लेट अस सपोज h मीटर अगर अपन मानते हैं. तो क्या पूछ रहा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीस पर 100 मीटर स्क्वायर. तो इस कॉनिकल टॉम्ब पर अगर अपन व्हाइट वॉश करते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 रुपए दे रखा है. तब इस टॉम्ब को व्हाइट वॉश करने में टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है टॉम्ब का. तो गिवन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले व्हाट इज गिवन? अपन स्केच बना लिया. सबसे पहले गिवन लिखेंगे. तो गिवन में क्या है? द बेस डायमीटर ऑफ टॉम्ब कितना दे रखा है? 14 मीटर दे रखा है. बेस डायमीटर को जनरली किससे लिखते हैं अपन? कैपिटल D से. D स्टैंड फॉर डायमीटर. सो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस r will be equals to diameter upon 2. तो 14 upon 2 मीटर that is 7 मीटर उसका बेस का रेडियस हो गया. सेकंड क्या दे रखा है? स्लांट हाइट ऑफ टॉम्ब. जो टॉम्ब है उसका स्लांट हाइट को किससे लिखते हैं अपन? L से. तो L कितना दे रखा है आपको? 25 मीटर.
नाउ कार्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम सीए से लिखते हैं। तो सीए से ऑफ कॉनिकल टेंट को यहाँ क्या नाम दिया, जो कॉनिकल टेंट बना उसका नाम दिया टॉम्ब। ठीक है, सो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब विल बी इक्वल्स टू पाई आर एल मीटर स्क्वायर। अपन यूनिट लिख दिया क्योंकि यूनिट मीटर स्क्वायर में। वैल्यू पुट अप करें 22/7, रेडियस आपका 7 है, स्लांट हाइट आपका 25 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 22 into 25 मीटर स्क्वायर। अब 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 and 5 55, सो 550 मीटर स्क्वायर इसका टॉम का एरिया आया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका टोटल एरिया टॉम का 550 मीटर स्क्वायर है। अब अपने को इस टॉम पर व्हाइट वॉश, टॉम का मतलब समझ रहे, जैसे कोई टॉम आपने देखा, जैसे कोई मस्जिद का जो शेप होता है ऊपर टॉम का मतलब इस तरह का कर्व फॉर्म में है ना, तो आप उसका जो व्हाइट वॉशिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो लिखेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का कॉस्ट कितना है ₹210। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश कितना हो जाएगा ₹210 अपॉन 100। और अपना टोटल एरिया कितना है, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी सो 210 अपॉन 100 into 550, 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, सो फाइनली टोटल कॉस्ट होगी ₹21 into 55। अब 21 into 55 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 21 into 55 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटे 1155, सो ₹1155, दैट इज 1155, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, टॉम का सरफेस एरिया निकाला, फिर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी 210, तो 1 मीटर स्क्वायर की 210 अपॉन 100 और इनटू 550 मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉस्ट 1155। कैलकुलेशन का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंसली आपको रीड आउट करना है। बोर्ड में भी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है सभी सब्जेक्ट में, आपको फर्स्ट 15 मिनट, पहले 15 मिनट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि क्वेश्चन में व्हाट गिवन है, पेपर पैटर्न किस तरीके का है और कैसे हमें पेपर की स्टार्टिंग करनी, सो दैट वी कैन अचीव गुड मार्क्स। Okay, now question number 7. So let question number 7 read. Question is given, a joker cape is in the form of right circular cone। एक कोई जोकर का केप है, जैसे आप बर्ड केप देखते हैं कॉनिकल, तो ये कोई जोकर का केप है। जोकर केप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस। बेस रेडियस देखो ये वर्टिकल हाइट है और बेस रेडियस लेट अस पुट ये r है। r कितना दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड हाइट इज 24 h दे रखा, ये आपका 24 सेंटीमीटर हाइट हो गया, वर्टिकल हाइट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 केप। ऐसी 10 केप बनानी है तो आपको टोटल एरिया कितना लगेगा। तो सबसे पहले लेट द स्लांट हाइट जो है वो अपन L सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं इस ABC जोकर केप को। सो अब मैं गिवन क्या लिखी सबसे पहले, देखिए बेस रेडियस ऑफ जोकर केप कितना दे रखा है, बेस रेडियस ऑफ जोकर केप कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है इसका,
height of joker cape JC, that is height अपन h मानते हैं, h दे रखा 24 सेंटीमीटर. Let the slant height B, slant height B कितना है L है. Let the slant height be L सेंटीमीटर. तो सबसे पहले स्लांट हाइट किसे निकालेंगे, इंटरवल रिलेशन बिटवीन RHL L. सो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्लांट हाइट किसके बराबर होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. सो r कितना है 7 स्क्वायर का मतलब 49, 24 स्क्वायर का मतलब 576. ये कितना हो जाएगा 625. 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के डिजिट हैं. अगर बेस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट आपका कितना आएगा, देखो यहां अपन ने 7 का स्क्वायर 49 है और 24 का स्क्वायर 576 है. अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले वाली स्टेप 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. ओके, तो स्लांट हाइट कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर. ये है स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर. अब अपने को क्या करना है, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ वन जोकर केप. एक जोकर केप का कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू स्लांट हाइट कितना आ गया 25. तो 7 से 7 कैंसिल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट विल बी 22 इंटू 25, अगेन 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक जोकर केप का एरिया. अब हमें ऐसी कितनी जोकर केप बनानी है, 10 जोकर केप. सो नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड to form 10 such joker cape will be equals to 550. एक जोकर केप का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का इंटू 10 कर देंगे तो ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा किसको, ऐसी 10 जोकर केप बनाने में. तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 8, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. एक bus stop जो है that is barricaded from the remaining part of road. जो रोड का जो बचा हुआ पार्ट है उसको barricaded किया जाता है, मतलब बाधित किया जाता है. barricaded का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बैरिकेडेड करते हैं, मींस पर्टिकुलर एरिया को अपन क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट के आवागमन को हम रोक देते हैं. तो कुछ एरिया जो है वो बैरिकेडेड किया जा रहा है बाय यूजिंग 50 होलो कितने 50 होलो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के कॉन्स से. माना कि एक जो कॉन है ऐसा होलो कॉन है और बस स्टॉप पे कुछ एरिया को अपन बैरिकेडेड कर रहे हैं ऐसी होलो कॉन्स से. और कॉन्स की संख्या कितनी है 50 कॉन्स है. ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर का मतलब लेट अस सपोज ABCD द वन होलो cone which is used for the barricade at the bus stop. इसका बेस का डायमीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर. ये बेस का डायमीटर है एंड हाइट इसकी 1 मीटर है. 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर. If the outer side of each of cone is to be painted and the cost of painting be the ₹12 per meter square. जो होलो जो अपन
बैरिकेडिंग के लिए जो अपन कोन यूज ले रहे हैं उस कोन के टॉप को, आउटर साइड को अपन कलर कर रहे हैं और कलर की कॉस्ट है 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीस कॉन्स? तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक कोन का आउटर एरिया कितना है। दैट इज आउटर एरिया कैसे निकालते हैं अपन? कार्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए क्या गिवन है, हाइट, हाइट ऑफ कोन दैट इज h किसके बराबर दे रखा? 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। और रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की जो रेडियस है दैट इज r, वो कितना दे रखा आपको? डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 20 अपॉन 100 मीटर दैट इज एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 अपॉन 10 का मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसका बेस का रेडियस हो गया। ओके, अब अपने को क्या करना है, ऐसे होलो कोन का आउटर सरफेस एरिया मींस अपने को कार्ड सरफेस एरिया निकालना। तो कार्ड सरफेस एरिया के लिए ये तो इसकी रेडियस थी, ये हाइट है, ये लेटर्स को इसकी स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। और स्लांट हाइट क्या है? तो यहां लिखेंगे लेट द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बी, स्लांट हाइट बी L मीटर। Then L, R और H में क्या रिलेशन है? L is given by R square plus H square। तो R कितना था? 0.2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितना है? 1 स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1.04 मीटर स्क्वायर। 1.04 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1.02 मीटर आ जाएगा, 1.02 मीटर। नाउ CSA, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ वन होलो कोन, जो बैरिकेडेड में यूज आ रहा वन होलो कोन का कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल मीटर स्क्वायर। तो पाई 22/7 है आपका, आर आपको दे रखा था 0.2 मीटर इनटू एल कितना आया आपका? 1.02 मीटर। तो टोटल हो गया 0.22/7 इनटू 0.2 इनटू 1.02 मीटर स्क्वायर। देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 के बाद एक जीरो, यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद 2 जीरो। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो सीएसए आपके पास आ जाएगा 22 इनटू 2, ये 44 हो जाएगा, 44 इनटू 102 अपॉन 7000 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ वन होलो कोन। एक होलो कोन का कार्ड सरफेस एरिया कितना? अब अपने को कितना दे रखा है कि इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया विल बी 0.64056 मीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद वाली क्वांटिटी आ रही है। अब देखो एक का एरिया इतना, अपने को कितने कॉन्स पर कलर करना है? आउट ऑफ 50 होलो कॉन्स पे। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं। नाउ अब अपन क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ऐसे 50 कॉन्स निकालेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ सच 50 होलो कॉन्स will be equals to 50 into A का एरिया कितना है? 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास 32.028 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल एरिया जिसको हमें पेंट करना है वो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब अपने को कॉस्ट कितना दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है पेंटिंग का 12 रुपीस। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग
और पेंटिंग कहाँ कर रहे हैं? पेंटिंग ऑन आउटर पार्ट, आउटर सरफेस ऑफ होलो कोन। भाई ऐसे आपको 50 होलो कोन चाहिए वेरिफिकेट करने के लिए, हर होलो कोन को अपन क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ होलो कोन किसके बराबर है? ₹12 है। और टोटल एरिया कितना है? कितना, इसलिए कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग will be 12 into 32.028 rupees. Okay, so on calculating this you will get it will be equals to 384 rupees point 336 पैसा। ठीक है, ये डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा आप ध्यान रखिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो होप you like this video. Please like it, share it and subscribe.